Dear all, as all of you are aware that the placement season arrived in your campuses and the different companies started visiting for the placements. In your placement paper, in the written test, you will find the 4 different sections. First is quantitative aptitude, second logical reasoning, third verbal ability, and the fourth technical part, pseudocode or sometimes coding, and sometimes you will find essay writing as well. In the quantitative aptitude, we covered almost all the topics in our video series, but today I am going to talk about something very important, and that is time and work. You will find at least 2 to 3 questions from time and work in different examination. So this is one of the important topic from the placement perspective. In our video, we are going to cover something, the different types of questions being asked in from this particular topic. So let us start. So the first type of question is easiest one and easiest type, and that is based on MDH formula. M1 D1 T1 M1 D1 T1 E1 divided by W1 equals to M2 D2 T2 E2 divided by W2, where M is men, sometimes women as well, child as well, D days, T time, E efficiency, and W work. So this formula usually, you can use it in certain type of questions. Here what is given? 16 workers working 6 hours a day can build a wall of dimension this. So the work is given, men are given, time is given. Here they are not talking about efficiency, not an issue. हमारे फॉर्मूला से efficiency हटा देंगे. Sir, 25 men, 25 in 25 days. The days are also given. So men, days, time, and work is given. In how many days 12 workers working 8 hours a day can build a wall of dimension this? आपसे पूछा है कि कितने दिन में 12 workers 8 hours a day काम करके काम को कंप्लीट कर देंगे. डायमेंशन अलग है तो वर्क भी अलग हो गया. तो हमारा m दिया हुआ है 16, डेज दिया हुआ है 25, टाइम दिया हुआ है 6 और वर्क दिया हुआ है 150 into 20 into 12. मैंने वॉल्यूम ले लिया किसका? वॉल का. दैट इक्वल्स टू 12 men, डेज नहीं दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 8 hours डिवाइडेड बाय 800 इंटू में 15 इंटू में 6. अब आप प्योर कैलकुलेशन है, इससे जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, आपको D2 की वैल्यू आ जाएगी और वो D2 की वैल्यू आएगी मेरे हिसाब से 50 डेज. ये था पहले टाइप का क्वेश्चन MDH फॉर्मूला का. M1 D1 T1 E1 divided by W1 equals to M2 D2 T2 E2 divided by W2. Moving to the next question. A man, a woman, a child can do a piece of work in 6 days. Man only can do it in 24 days, women in 16 days. In how many days child can do the same work? Sir, time and work कराने के कई तरीके हैं. कुछ लोग इसको यूनिटरी मेथड से कराते हैं, कुछ लोग इसको एफिशिएंसी वाले मेथड से कराते हैं और कुछ लोग कोई दूसरा भी मेथड अप्लाई करते हैं. एक्चुअली ट्रिक्स जो हैं वो मैं भी कराता हूं, लेकिन ट्रिक्स एग्जाम में थोड़े कम काम आते हैं क्योंकि इतने सारा टॉपिक है और इतने सारे ट्रिक्स हैं कि आपका चांस है कि आप उसको भूल सकते हो एग्जाम में, प्रेशर सिचुएशन में. सो आई ऑलवेज ट्राई टू go through the conceptual way, basic way of solving questions, and you can do it very easily. अच्छा, ये ना बचपन से आपने कर रखा होता है तो आपको बहुत आसान होता है करने में, तो आपको याद कुछ नहीं रखना होता है. And let me tell you, you can do all these questions through that basic conceptual method of unitary method very easily and very fast as well. Let me do the questions through that method. So those who are not comfortable with this method can adopt any method which they are comfortable in,
but I will solve all the questions through unitary method. So a man, a woman, a child can do a piece of work in 6 days. Man can only do it in 24 days. तो एक यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि काम जो भी दिन दिया हुआ है उसको आप एक दिन का निकालते हो सबसे पहले. तो मैन करेगा 1/24, एक दिन में 1/24 काम. विमेन कैन डू इट इन 16 डेज. विमेन कर लेगी एक दिन में कितना काम भाई? 1/16 काम. ठीक है. और बच्चे का मुझे पता नहीं है तो 1/c कर देता हूं. और ये तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/6 काम, क्योंकि तीनों मिल करके 6 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं. तो 1/6 काम. अब आपको ये निकालनी है इसकी वैल्यू. तो 1/c इक्वल्स टू 1/6 माइनस 1/24 माइनस 1/16. एलसीएम ले लेते हैं. 48 आएगा. 8 छके 48, 24 दूनी 48, 16 तिया 48. ये हो गया. 8 में से 5 गया. 3/48, 16 तिया 48. सी का आ गया भाई 16 डेज. बच्चा कितने दिन में काम कर लेगा? 16 दिन में. 1/c इक्वल्स टू 1/16, तो c इक्वल्स टू 16. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक तो इसके टाइप्स बहुत सारे हैं क्वेश्चंस करने के. टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी. ये मेजर 4 टॉपिक्स हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की. तो इन पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए. और प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया है तो इसकी रिवीजन भी अच्छे से होनी चाहिए. चलिए सर, थर्ड अलग टाइप का क्वेश्चन. a plus b, b plus c, c plus a can complete the work in 10 days, 12 days and 24 days respectively. In how many days they alone do the work? बहुत ही सिंपल. a plus b कितने दिन में काम कर रहा है? 1/a plus b कितने दिन में कर रहा है? 1/10. b plus c 1/12. c plus a 1/20. ठीक है. आप देखेंगे मैं हर बार 1/10, 1/12, 1/20 मतलब एक दिन का काम से स्टार्ट करूंगा. यूनिटरी मेथड में यही करना है. यूनिटरी मेथड में पहले 1 डेज में कन्वर्ट करना है, उसके बाद कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है. ठीक है. तो मैथमेटिकल ऑपरेशन आप कर सकते हैं. जोड़ना है जोड़ देते हैं. मुझे इंडिविजुअली निकालने के लिए बोला है, मैं काम करता हूं इन तीनों को जोड़ देता हूं. इन तीनों को मैं जोड़ूंगा तो आएगा twice of a plus twice of b plus twice of c, that equals to 1/10 plus 1/12 plus 1/20. तो सर मैं यहां ले लेता हूं twice of a plus b plus c equals to, एलसीएम ले लिया 10 12 20 का, ये हो जाएगा 60. 10 छक्का 60, 12 बचे 60, 20 दिया 60. ये हो गया 11/6 5 11 3 14, 14/60. यहां से हो गया 214, 30, 7/30 एंड a प्लस b प्लस c की वैल्यू आ गई 7/60. सर a प्लस b प्लस c की वैल्यू आपकी 7/60 आ गई है. आपसे इंडिविजुअली पूछा उसने. इंडिविजुअली कैसे निकल जाएगा? आप इसमें से इस इक्वेशन को घटा लो तो c का निकल जाएगा. इस इक्वेशन में से इसका घटा लो तो आपको a का निकल जाएगा. और इस इक्वेशन में इसका घटा लो तो आपको b का निकल जाएगा. ये आप सॉल्व कर लेंगे. आपका ऑप्शन मेरे हिसाब से इसमें आना चाहिए 20 30. आप देख लीजिएगा आ जाएगा इसका आंसर. आप बोलेंगे तो मैं कैलकुलेट भी कर दूंगा, कर ही देता हूं. सर c का निकल गया मेरा 7/60 माइनस 1/10. ये 60 हो गया, यहां हो गया 7, यहां हो गया 6, 1/60. 60 वाला ऑप्शन चेक कर लीजिए, एक ही में है, ये आंसर हो गया. आप चाहे तो अगला भी निकाल सकते हैं. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन. 1 man or 2 women or 3 boys can do a work in 44 days. Then in how many days will 1 man
1 man, 1 woman and 1 boy do the work. सर 1 man यहाँ और है, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है कि एक आदमी या 2 औरत या 3 बच्चे मिलके किसी काम को 44 दिन में करते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तीनों का एक एक का निकाल लो। तो भाई एक आदमी कितने दिन में कर लेगा, 1/44। मैंने हमेशा बोला है एक दिन का काम निकालना है। सर 2 women 1/44, तो भाई 1 women कितने में, 1/88। और ये सही भी है, एक औरत अगर 44 दिन में काम करती है तो 2 औरत आ जाएगी तो 88 दिन, डबल टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। सर 3 boys 1/44, तो 1 boy 1/44 इंटू 3 बोला है। अब तीनों एक तीनों हैं, एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। लो भाई 1/44 प्लस 1/44 इंटू 2 प्लस 1/44 इंटू 3, इसको सम करना है। जो भी आंसर का उसको उलट के लिख देंगे, पलट के लिख देंगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। तो ये एक दिन का काम निकल रहा है तीनों का। तो ये हमने 1/44 कॉमन ले लिया, ये हो गया 1, ये हो गया 1/2 प्लस 1/3। इसको आप करो 1/44 इंटू में 6 नीचे, 6 3 2, ये हो गया 6 3 11, 11/44 गुने 6, 1/24। पलट के लिख दीजिए, आंसर आ गया 24 डेज। सही है, आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 5, मैंने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी लिए हैं इसमें, ऑल्टरनेट डेज के, मैंने वेजेस के भी क्वेश्चन लिए हैं, मैंने पाइप एंड सिस्टर्न भी लिया है जो पेपर में पूछा जाता है। तो हर एक टाइप के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। Sir, question number 5. If 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days and 13 men and 24 boys can do it in 4 days, how long will 7 men and 10 boys take to do it? Sir, आप यूनिटरी मेथड, मैं भी फिर से यूनिटरी लगाऊंगा और कैलकुलेशन आपको इसमें बताऊंगा कितना आसानी से किया जा सकता है। इसमें दिया हुआ है कि 12 men plus 16 boys finish the work in 5 days, तो 1/5 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इक्वेशन है 13 men plus 24 boys in 4 days, एक दिन में 1/4 काम, ठीक है। मैं अगर इस 5 को इधर ले जाऊं, इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 into 12m plus 16b that equals to 1 and 4 into 13m plus 24b equals to 1। सर इसके लिखने का मतलब क्या है, 5 times of this combination will finish the work in 1 day and 4 times of this combination will finish the work in 1 day। जब ये दोनों 1 day में कंप्लीट कर सकते हैं तो मैं इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकता, कर सकता हूं। तो मेरे पास जब भी मेन बॉय, मेन वीमेन, मेन चाइल्ड ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कोशिश कीजिए कि हाउ मेनी मेन आर इक्वल टू हाउ मेनी बॉयज इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है, वो निकल जाएगा आपका। तो चलिए भाई करते हैं। ये हो गया 60m plus 80b equals to 52m plus 96b, इधर आ गया, ये हो गया 8m, ये हो गया 16b, m equals to twice of b, m equals to twice of b आ गया। सर m equals to twice of b आ गया है, और आप दोनों इस क्वेश्चन में से कहीं भी रख दे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। m equals to 2b यहाँ डाल दीजिए, 24b plus 16b can finish the work in 1/5, एक दिन में 1/5 काम, 24 और 16 40, 24 36 40, 40b बोले तो 1/5, b बोले तो 1/200। सर अगर क्वेश्चन पूछा रहता कि एक बच्चा कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा तो आपका आंसर होता 200 दिन। अगर इसी में क्वेश्चन होता कि एक आदमी कितने दिन में काम कर लेगा तो आपका आंसर होता
100 days. Why? Because man is twice efficient than boy. ठीक है, तो जो ज्यादा एफिशिएंट होगा उसको टाइम कम लगेगा. ठीक है, लॉजिकल है. चलिए, लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है. पूछा है 7 men and 10 boys, 7 men और 10 बच्चे मिल करके इस काम को कितने दिन में करेंगे. आपको पता है 7m के जगह पे मैं लिख दूं 14 बॉय, क्योंकि 7m के जगह मैं 2 बॉय, m इक्वल्स टू 2 बॉय, तो मैं लिख रहा हूं 14 बॉय प्लस 10 बॉय. कितने दिन में करेंगे? ये हो गया 24 बॉयज. एक बॉय 1/200, तो 24 बॉय 24/200. जो भी आंसर आएगा उसको पलट लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका. ठीक है, 200/24 कट जाएगा तो कर लीजिएगा. सर, क्वेश्चन नंबर 6. दिस वन इज रियली अ वेरी गुड क्वेश्चन, और मैं आपको इसका ना एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि इसको कैसे किया जा सकता है. ट्रिक नहीं, कॉमन सेंस. A takes twice as much time as B and thrice as much time as C to complete a job. यहां एफिशिएंसी की बात नहीं हो रही है, यहां टाइम की बात हो रही है. ठीक है, एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के उल्टा चलते हैं, अलग प्रॉपर्टी रखते हैं. तो आपको क्या करना है? A takes twice as much as time as B and thrice as much time as C. चलो भाई, तो C काम ले लेते हैं कि C x डेज में काम करेगा. क्या दिया हुआ है भाई? A equals to twice of B और A equals to thrice of C. तो अगर C x में कर रहा है तो A कितने में करेगा? 3x. और B कितने में करेगा भाई? 3x/2 डेज में. तो x के टर्म में मेरे पास A B C तीनों का वैल्यू आ चुका है कि वो कितने कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो ये तो हो गई A B C की काम की बारे में बात हो गई. कह रहा है कि दे कंप्लीट द जॉब इन 4 days. 4 दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं. ले लो भाई, इक्वेशन बना देते हैं. 1/x प्लस 1/3x प्लस 2/3x इक्वल्स टू 1/4. 4 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं. एक दिन इसका काम, एक दिन इसका काम, एक दिन इसका काम, मिला करके पूरा, मतलब तीनों, एक दिन तीनों का मिला के काम. तो तीनों मिल करके 1/4. ये 4 दिन में काम करते थे, एक दिन में 1/4 काम. 1/x कॉमन ले लीजिए. 1 प्लस 1/3 प्लस 2/3 इक्वल्स टू 1/4. सर, इसको सॉल्व करते हैं. 3 और 3 6, 6/3 हो गया. 6/3 बोले तो 2/x इक्वल्स टू 1/4. सो x इक्वल्स टू 8. x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 8 आ गई. तो x 8 है, ये हो गया 24 और ये हो गया 12. 8 24 12 कहां पे है? यहां पे. टिक लगा देते हैं. चलिए, मैं एग्जाम में बताता हूं आप कैसे कर सकते हैं. आपको ये वाला तो अप्रोच आता ही है करने के लिए, लेकिन आसानी से अगर करना है, जल्दी करना है, तो आप सीधे ऑप्शन पे चले जाओ. मैं आपको बताऊं, एप्टीट्यूड के मोर देन 30-40% क्वेश्चन, इवन 50% क्वेश्चन कैन बी सॉल्व थ्रू ऑप्शंस. बस दिमाग होना चाहिए. ठीक है, बोला है कि ये इस A जो है C का 3 गुना है, 8 3 24, और B का 2 गुना है, 12 2 24. अब आप देख लो, इसमें तो ऐसे ही गलत हो गया. इस ऑप्शन को ऐसे ही काट दो. B की वैल्यू ज्यादा आ रही है, A की वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए डेज के टर्म में. ये ठीक सा लग रहा है देखने में, लेकिन 16 गुने 3 48 होता है, और 24 गुने 2 48 होता है. यहाँ 36 दे दिया, ये गया. सर, ये 10 20 30 ये देखने में आसान लग रहा है कि अच्छा ठीक है, ये 10 गुने 30 है और ये 10 गुने 20 है. नहीं, इसका डबल होना चाहिए. ये 10 गुने 30 तो ठीक है, लेकिन ये 20 गुने 2 होना चाहिए था. यहाँ पे अगर 20 के जगह 15 होता तो शायद ये भी आंसर हो सकता था. कंफ्यूजन होता इन दोनों के बीच में, तब हम शायद ये सॉल्व करते. लेकिन चूंकि ऑप्शन डायरेक्ट बता रहा है कि यही एकमात्र वैल्यू है जो इसका ट्रिपल है या इसका डबल है, तो आपको बिना सॉल्व किए हुए भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे. यह है चालाकी जो एग्जाम में आपको करना है. मूविंग फॉरवर्ड,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें मैं आपको थोड़ा सा जादू दिखाऊंगा। जादू कैसे होता है वो देखिएगा। A takes 4 days more than A and B together. B takes 9 days more than A and B together to complete a job. In how many days they can finish the job working together? सर A को A और B से 4 दिन ज्यादा टाइम लग रहा है, तो सर मान लीजिए A और B को लग रहा है X डेज, तो A को लग रहा है 4 + X और B को लग रहा है 9 + X। अब आप यूनिटरी से जाएंगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। 1/4 + x + 1/9 + x दैट इक्वल्स टू 1/x। आप इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और शायद आप इसका आंसर निकालो, शायद क्या निकाल ही लोगे। लेकिन इसमें मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। जब भी a एंड b से कंपेयर करके दिया हो a और b की वैल्यू, तो आपको कुछ नहीं करना है। सर इन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश द जॉब वर्किंग टुगेदर, a और b दोनों मिलकर के सर एक्स्ट्रा डे ऑफ A इंटू एक्स्ट्रा डे ऑफ B, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका रूट अंडर निकाल लीजिए। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आप नहीं बोला, फॉर्मूला और ट्रिक्स याद नहीं रहते एग्जाम में। यस नहीं रहते, बेसिक मेथड आपको सिखा दिया, लेकिन मैंने सोचा आपको ये जादू भी सिखा देता हूं। तो एक्स्ट्रा डे ऑफ A है 4, B है 9, रूट अंडर कर लो, ये हो गया 36, 36, ये हो गया 6। आप में से कोई मत बोल देना -6 भी हो सकता है, क्योंकि डेज कभी भी माइनस में नहीं आते, सो +6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, टाइम टेकन बाय 4 men to complete a work is double the time taken by 5 children. सर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आउट ऑफ दिस स्लाइड। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करिएगा, तो आप अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा जैसे मैं कराता हूं। Time taken by 4 men to complete a work is double the time taken by 5 children. Each men are twice more efficient than women. How long 12 men, 10 children and 8 women take to complete the work? It is given that a child can finish the work in 20 days. इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सबसे आखिरी लाइन में दिया हुआ है, आपको यहां से शुरू करना है। सर चाइल्ड कैन फिनिश द वर्क इन 20 डेज, तो आप 1c = 20 लिख दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, 20 डेज लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए। कह रहा है टाइम टेकन बाय 4 men to complete a work is double the time taken by 5 children. एक चिल्ड्रन अगर 20 दिन में काम करता है तो 5 चिल्ड्रन, एक चाइल्ड अगर 20 दिन में काम करता है तो 5 चिल्ड्रन कितने दिन में करेंगे? पहले मुझे बताइए, ज्यादा दिन लगेगा कम दिन लगेगा? अगर आपका आंसर है ज्यादा दिन, तो आपने टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझा। सर अगर एक आदमी को 20 दिन लग रहा है तो 5 लोगों को उससे कम दिन लगेगा। कितने दिन लगेंगे? 4 डेज, 5 टाइम्स कम दिन लगेंगे। ठीक है, इसीलिए यूनिटरी मेथड लिखना जरूरी है। 1/20 लिखते, 5/20 करते, 1/4 आता, वो 5 लोगों का एक दिन का काम होता, पलट के लिख देते, आंसर होता 4 डेज। लेकिन मैंने जानबूझ के लिखा, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। सर 5 चिल्ड्रन का 4 डेज आ गया। अब आप बोलोगे सर 5 चिल्ड्रन का क्यों निकाला? भैया 5 चिल्ड्रन से टाइम टेकन बाय 4 men to complete a work is double the time taken by 5 children. तो 5 चिल्ड्रन को 4 दिन लगता है, तो भाई 4 आदमी को कितना दिन लगेगा? 4 आदमी को लगेगा डबल, 5 चिल्ड्रन के डबल मतलब 8 डेज। चलो भाई मेरे को 2 इंफॉर्मेशन मिल गया, 5 चिल्ड्रन का भी मिल गया, 4 men का भी मिल गया। सर अगर 4 men का अगर 8 डेज आ रहा है तो 1 man कितने दिन में करेगा? बताओ, ज्यादा दिन लगेगा कम दिन लगेगा? ऑफ कोर्स ज्यादा दिन लगेगा। क्यों? क्योंकि 4 आदमी अगर 8 दिन में काम कर रहा है तो एक ज्यादा दिन लगेगा ऑफ कोर्स। तो कितना दिन लगेगा भाई? 32 डेज। ठीक है, एक आदमी 32 डेज। बात हो रही थी कि men is twice efficient than women. men twice efficient है किसके? women के। तो एक women, जो आदमी जो ज्यादा इफिशियंट होगा, डबल इफिशियंट होगा, उसको टाइम कम लगेगा, जो कम इफिशियंट होगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो वीमेन को कितना लगेगा भाई? डबल टाइम लगेगा। कितना दिन? 64 डेज। अब ये क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है। मेरे पास एक चाइल्ड का 20 डेज, एक मैन का 32 दिन 32 डेज और एक वीमेन का 64 डेज आ चुका है।
अब मुझे क्या करना है, हाउ लॉन्ग 12 men 10 children 8 women finish the work। अब मुझे इनका यूज करना है 12/32। एक आदमी एक दिन में कितना काम, 1/32 काम, तो 12 आदमी 12/32 काम, एक दिन का काम देख रहे हैं, प्लस 10 चिल्ड्रन, एक चाइल्ड 20 दिन में, तो एक दिन में 1/20, तो 10 चिल्ड्रन कितना दिन में, 10/20, एक दिन का काम इनका निकल गया। और इसी तरीके से हमारा निकल जाएगा विमेन का, एक का है 64, तो 8/64। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1। दिस इज रियली वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आप इसको पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर समझिएगा, नहीं समझ में आए दोबारा ट्राई कीजिएगा, दोबारा देखिएगा। वीडियो लेक्चर्स के यही फायदे हैं कि आप उसको बार बार देख सकते हैं और अपनी कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। सर अगला पार्ट जो है वो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा, टाइम एंड वर्क की प्रैक्टिस सीट।